3 minutes or 5 minutes for the awareness regarding coronavirus infection, and then we will begin our class, that is chapter number 10, respiration. So let us begin by chanting Omkaram 3 times. Shubhra, can you join me? Ram. So as I told you, है ना बेटा, we have to be very careful बेटा, है ना. We all know there is no medicine against this coronavirus infection. There is no vaccine available, है ना. You all know it is caused by virus, है ना. So what should do? We should take proper precautions. You might have heard a proverb: prevention is better than, complete करो कोई. Cure. Cure. Very good. Prevention is better than cure, right? So now I am going to build my screen. है ना Shubhra? So we'll see one small video. And someone might have seen earlier also, so doesn't matter. एक बार और देख लेना बेटा, अगर आपने पहले देखा हो उस वीडियो को तो, है ना, एक बार और देख लेना. It's very nice video prepared by UNICEF for children, right? So now am I presenting बेटा Shubhra? Yes, sir. Yes. Now see the video. ओके, दिखा बेटा, साउंड ठीक है? Yes, शुभ्रा, sir. हाँ Yes, देखो, sir. ये है कोरोना वायरस. ये थोड़ा अपना एक्सरसाइज कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है, अपना को मजबूत बना रहा है किसी पर अटैक करने के लिए, है ना. ये सब जस्ट एनिमेशन है ना. देखो, अभी आपने क्या देखा? ये he was not wearing mask, so he got infected, and the other one who was wearing mask, he was not infected. So right now see it very carefully and note down any question if you want to ask me. थोड़ा और पीछे करता हूँ, अब देखो पूरा. ये देख रहा है ना, prepared by UNICEF for every child. UNICEF is for every child actually, not for this one. So could you see बेटा, है ना? Any question? Anyone? So what are the precautions? Raghav, first precaution, क्या precaution लेना है हमें? Sir, wearing mask. Wearing mask. Okay. Another one? Social distancing. Wash our hands. Washing hands frequently and using sanitizer if washing hands is not possible then, है ना. And very good beta, and you all are well aware children, so follow yourself as well as, है ना, tell others also, and mostly take care of your elderly parents, दादा दादी नाना नानी जितने भी हैं उनका सबका ध्यान आप लोग खुद रखिए, है ना. उनसे बात करते रहिए, है ना. टेक केयर एवरीबॉडी. Okay, beta. Very good. Another question? Sir,
No, sir. Yes. Okay, beta. So now let us begin our class, right? So let us learn through Tata Classes online. Shubhra, what can you see on the screen? Tata classes. Okay, है ना? So first of all, respiration organism. Respiration is the breath of life actually. So let us learn this one. Time out. Oh, so let me log in again. Let me log in again. It will take few minutes. Yeah, I'm there. Class 7 respiration. What is the importance of respiration? Huh? That should also you should know the breath of life. Yes. Shall we start? Cellular respiration. Okay. Yes. अगर sound कम होगा तो बताना मुझे. Our body needs energy in order to function. Sound is okay? Yes, sir, it is okay. And note down the questions, beta. Yes, If you want to ask me after this video, you can ask me the questions. And to create new cells needed for growth and development. We get this energy from the food we eat as a result of the process of cellular respiration. Cellular respiration is carried out by every cell in both plants and animals and is essential for life. When we eat, the nutrients in food are broken down into glucose during the digestive process. This glucose is transported in the blood to the cells where it is needed. Oxygen is transported by the blood to the cells in the body. Inside each cell, glucose is oxidized to release energy. The process of breaking down glucose in the presence of oxygen to release energy is called aerobic respiration. Carbon dioxide and water are also released as byproducts during this process. You may note down this equation. Note down this equation, beta. Glucose plus oxygen, carbon dioxide plus water plus energy. Energy is released in the form of special molecules called ATP. है ना? What is the full form of ATP? Raga? sir. Adenosine triphosphate. Good. Just now you have seen in the previous slide also, and I have told you on the last day when I started this chapter also. Right? This is called word equation, beta. इसको बोलते हैं word equation, and this is called chemical equation. जो नीचे है इसको बोलते हैं chemical equation. C6H12O6 is the formula of glucose. May try to. हाँ बेटा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन O2 फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन, ये बैलेंस करने के लिए नंबर लगाओ 6 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. ATP नहीं याद रहे चलेगा, एनर्जी लिख देना सिर्फ. ठीक है, चलिए मूव अहेड. लिख लिया बेटा. C6H12O6 plus 6O2 arrow 6 CO2 plus 6 H2O plus energy. Let us go ahead. In some yeasts and bacteria, the breakdown of glucose takes place in the absence of oxygen. Without oxygen, beta. The yeast and some bacteria, they do not require oxygen.
So in their cells, energy is released from the glucose without the use of oxygen, which is called anaerobic respiration. है ना? In anaerobic respiration, what equation is glucose plus no oxygen, or you can write down aero को बोले without oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल, अल्कोहल में भी इथाइल अल्कोहल, इसको इथेनॉल भी बोलते हैं, C2H5OH प्लस एनर्जी, बट लेस एनर्जी रिलीज बिकॉज दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट नीड मच एनर्जी लाइक अस। हमारे तरह इनको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, इसलिए दे अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन, लेस एनर्जी। सो कभी डिफरेंस लिखने आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, है ना? एक में ऑक्सीजन यूज हुआ, एक में ऑक्सीजन नहीं यूज हुआ, दोनों में ग्लूकोज यूज हुआ बेटा, है ना? सिमिलरिटी हो गया। और दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, देखा आपने राघव? राघव सर दोनों में निकला था, लेकिन टॉपिक में क्या निकला था? वाटर निकला था, अल्कोहल नहीं, यहाँ अल्कोहल निकल रहा है। तो डिफरेंस समझ आ रहा है ना बेटा? और क्या नजर आया? उसमें मोर एनर्जी वाज रिलीज, यहाँ पर क्या हो रहा है? लेस एनर्जी इज रिलीज, क्योंकि लेस एनर्जी यूजेज। कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का नहीं होता है इसमें, और उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का होता है बेटा। चलिए लेट्स गो अहेड। This is known as anaerobic respiration. Anaerobic respiration is not as efficient as aerobic respiration. That's because glucose does not break down completely in the absence of oxygen. बता सकते हैं ना? Why less energy is released during anaerobic respiration? Anyone? Sir, what is the question? Question is, why is less energy released during anaerobic respiration? Energy release less क्यों हो रहा है इसमें? Sir, because the particles are small. नहीं बेटा, because glucose does not break down completely. ये ग्लूकोज एनर्जी रिलीज किससे हो रही है? ग्लूकोज से हो रही है। तो ग्लूकोज का इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, नॉट कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। और इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन कंप्लीटली, सो मोर एनर्जी इज रिलीज, है ना? 38 ATP, यहाँ मात्र 2 और 3 ATP आगे दिखाएंगे आपको। Glucose does not break down completely during anaerobic respiration. Note down. That's why less energy is released. So, less energy is released. Fermentation is a type of anaerobic respiration. नाम सुना आपने फर्मेंटेशन? बहुत सारे बेवरेजेस बनाते हैं, आपने नाम सुना होगा एसिटिक एसिड या विनेगर। विनेगर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्रूट जूसेज बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन, है ना? फर्मेंटेशन में अल्कोहलिक बेवरेज बनते हैं, अल्कोहल बनते हैं, है ना? और फिर उस अल्कोहल को उससे हम लोग बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग सेपरेट करते हैं। तो वो जो अल्कोहल बन रहा है उस प्रोसेस में, दैट इज बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना? देखिए ध्यान से। Which one of the products of the reaction is alcohol? देखिए डो राइज हो जाता है, आपने देखा होगा जब आप ब्रेड केक बनता है तो उसमें ईस्ट डालते हैं, देखा किसी ने? या किसी Yes, के sir. आसपास बेकरी का इंडस्ट्री हो तो उनसे देखो जाकर के, बेकरी वाले भी ईस्ट का यूज करते हैं। तो जब डो बनाते हैं ना तो उसमें ईस्ट डाल करके डो में और वाटर डाल करके हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से मिलाते हैं, गूंथते हैं। ईस्ट इज यूज इन ब्रेड मेकिंग टू प्रोड्यूस बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच गेट ट्रैप्ड इन द डो एंड मेक इट राइज। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकला बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकला? एनीवन कैन थिंक? ईस्ट डाला था हमने, है ना? मैदा लिया, मैदे में थोड़ा चीनी मिला दिया और ईस्ट डाल करके उसको वाटर डाल के हल्का सा वार्म वाटर लेंगे तो और अच्छा बनेगा, और उसको हमने गूंदा तो क्या हुआ? ईस्ट
ईस्ट जो होते हैं दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द डो और फ्रॉम द मैदा और फ्लोर एंड दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, उनका नंबर बढ़ने लगता है एंड ईच ईस्ट सेल रेस्पायर. So during respiration, what is the mode of respiration there? Aerobic or anaerobic? Anaerobic. Anaerobic. और अभी आपने देखा था Anaerobic. during anaerobic respiration, what is released? It releases carbon dioxide. Carbon dioxide, alcohol. That carbon dioxide comes out like bubbles और वो निकल नहीं पाता है तो पूरे ब्रेड को क्या करता है, वो फ्लफी बना देता है. यहाँ निकलता है, होल हो जाते हैं, उसमें एयर भर जाती है और ब्रेड आपका जो है वो केक आपका फ्लफी बनता है ना. ओके सर सर जब हम गर्म पानी में नमक डालते हैं तो उसमें बबल्स क्यों आते हैं? नहीं बेटा, गर्म पानी में आपने नमक डाला तो क्या होता है, एयर बबल्स बाहर निकलते हैं. जो गर्म पानी में भी डालोगे, किसी पानी में डालोगे ना कुछ चीज भी, तो जो एयर जो ट्रैप होता है वाटर पार्टिकल्स के बीच में, दैट कम्स आउट और उसका पोजीशन कौन ले लेता है, सॉल्ट ले लेता है ना. ओके लेट्स गो अहेड. Yeah. Some organisms respire anaerobically and produce lactic acid. And now देखो बेटा, sometimes what happens, although we respire aerobically, aerobic respiration, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे muscle cells particularly when we run fast, when we do very heavy exercise like weight lifting, है ना, तो कभी तेज साइकिलिंग कर रहे हैं या कई बार जो एथलीट होता है या बैट्समैन होता है, कई बार फास्ट रन लेने के लिए भागता है, बहुत तेज भागता है, तो मसल्स में उस समय ऑक्सीजन पूरा नहीं पहुंच पाता है, लेकिन उस समय एनर्जी रिलीज करने के लिए मसल सेल जो है वो एनारोबिकली रेस्पायर कर लेता है और तब उसको क्रैम्प आता है. तो पकड़ के बैठ जाता है खिलाड़ी, तो क्रैम्प आ गया, फिर फिजियो आता है, फिर वहां पर कुछ लगाता है, मसाज करता है उसको और फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है ना. देखा होगा आपने, क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, लाइव मैच देख रहे होंगे तो कई बार ऐसा होता है ना, क्रिकेटर्स को जो पैर में मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं. सुना है किसी ने बेटा? हेलो. Yes, sir. यस बेटा, है ना. तो व्हाट हैपेंस, ग्लूकोज कैन आल्सो ब्रेक डाउन विदाउट ऑक्सीजन बट वेयर, इन द मसल्स. और तब मसल्स में क्या बनते हैं, लैक्टिक एसिड Sir, lactic acid. एनर्जी रिलीज, और कुछ नहीं, सिर्फ लैक्टिक एसिड बनता है. और जो लैक्टिक एसिड बनता है, तो बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल, व्हाट हैपेंस, इट गिव्स सीवियर पेन, जिसको हम स्प्रेन बोलते हैं और क्रैम्प बोलते हैं. बहुत तेज दर्द होता है बेटा. सर हिंदी में सर झुंझुनी बोलते सर, झुंझुनी होती है सर ऐसा. झुनझुनी तो बेटा वो जब दब जाता है ना तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है उस एरिया में, तो झुनझुनी लगने लगती है. उतनी तक तो सीमित है, दर्द नहीं होता उसमें, लेकिन क्रैम्प जब होगा तो बहुत सीवियर पेन होगा, बहुत तेज दर्द होता है. वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है बेटा. So lactic acid is produced in the muscles when in the muscles breakdown of glucose takes place anaerobically. और फिर ये लैक्टिक एसिड जब तक बाहर नहीं निकलेगा वहां से, तो हम क्या करते हैं, मसाज करते हैं. तो मसाज करने से क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है वहां पर है, फिर वो लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन होता है और फिर हमें रिलीफ मिलती है. या गर्म पानी से काई करते हैं, उससे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है वहां पर है. और हाँ बोलो बेटा. सर फिर वो लैक्टिक एसिड का क्या होता है? लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट कम्स आउट. सर यस सर सब ब्रेक हो जाता है. ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है बेटा, लेकिन ये मसल्स में होगा हमारा. सो दो तरह के हम पढ़ रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. एक तो इन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सम स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, है ना, एंड इन द मसल्स आल्सो, इन द मसल सेल्स स्पेशली जब होता है तो बनता है लैक्टिक एसिड. और एज ए होल अगर ऑर्गेनिज्म में बन रहा है तो क्या बन रहा है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. ठीक है सर जब भी हम कहीं गिर जाते हैं तो जब भी दर्द होता है हमेशा लैक्टिक एसिड की वजह से होता है? नहीं 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 बेटा, वो गिरने के बाद तो देखिए जब हम गिरते हैं तो हमारे जो टिश्यूज होते हैं ना, उनमें चोट लगने से उनमें कुछ सिक्रेशंस होता है, फिर
खासकर कुछ फ्लूइड निकलते हैं वहां पर है, उस फ्लूइड की वजह से वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आने का मतलब वहां के जो सेल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं बेटा, सेल डैमेज हो जाते हैं बहुत सारे, तो इस वजह से वहां पर स्वेलिंग आ जाती है और फिर दर्द होता है। ठीक है, कई बार तो काला पड़ जाता है क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, तो जब तक वो सब रिपेयर नहीं होगा, जो सेल्स डैमेज हो गए उनकी रिपेयरिंग नहीं होगी, तब तक आपको दर्द आता रहेगा, है ना। कभी इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आ जाती है, तो डॉक्टर गिव्स यू एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, है ना। और ऐसे तो हम एंटीसेप्टिक तो लगाते हैं वहां पर, दोबारा कोई ज्यादा इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है बेटा, वो मसल सर सेल्स डैमेज होते हैं इसकी वजह से। गुड, बोलो। सर जो सर अपनी सर फिंगर होती है उसके अंदर अपन सर ऐसे धागा लगा देते हैं सर, थ्रेड हाँ लगाते हैं, फिर तो उसके अंदर सर वो खून रुक जाता है, तो सर वो हाँ सर लाल क्यों सर, ज्यादा ही लाल या फिर सर व्हाइट हो जाता है सर कई बार। हाँ, देखिए आप इसे लपेट देते हैं जोर से, तो आपने क्या किया, जो वहाँ से वेन्स हैं वहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज हैं, वो ब्लड जो सप्लाई होता है वहाँ पर, वो ब्लड कैपिलरीज वेन्स और आर्टरी के थ्रू होता है, तो वो सब क्या होते हैं, रुक जाते हैं वहाँ पर, प्रेस दब जाती है बेटा, तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एक तरफ नहीं हो पा रहा है, जिधर नहीं हो पा रहा है उधर का पोर्शन व्हाइटिश कलर का हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तक ब्लड का सर्कुलेशन जा रहा है ओनली दैट पार्ट इज लिविंग पार्ट, है ना। तो फिर उसको अवॉइड करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए ज्यादा लंबा, एक्सपेरिमेंट के लिए तो ठीक है, फिर उसको अवॉइड करना चाहिए हमें। ठीक है, ओके बेटा, लेट अस गो अहेड। During vigorous ये exercise, देखिए, ध्यान से energy देखिए, is burnt up quickly. Even with rapid breathing, the body may not be able to supply enough oxygen to the muscle cells for aerobic respiration. When this happens, the muscles start respiring anaerobically, resulting in the buildup of lactic acid. This is what causes the muscle soreness associated with heavy exercise. ओके, मसल सोरनेस जिसको हम बोलते हैं क्रैम्प, है ना। सर यस, सर एक क्वेश्चन है सर बस। या बोलिए। सर सर जब भी सर हम लोग सर हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो सर हमारी सर ब्रीथिंग सर कितनी अपवर्ड चली जाती है सर, कितनी इंक्रीज हो जाती है। हाँ, हैवी एक्सरसाइज करते हैं या रन करते हैं, भागते हैं, 25 पर टाइम। हाँ, that depends on, that varies from person to person, और at what speed you are moving, इसको डिपेंड करेगी बेटा, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नीड बढ़ती है, और ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर करने के लिए वी स्टार्ट ब्रीदिंग फास्टर, है ना। नाउ लेट अस कम टू द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी में आइए देखते हैं हम लोग, है ना, ध्यान से देखना बेटा। Slides from current slide, right? We have learned about why do we respire, है ना? Now again let us see two types of respiration, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. In aerobic respiration, glucose with the use of oxygen gives out carbon dioxide plus water plus energy, and when it breaks down without oxygen, then it gives alcohol plus carbon dioxide plus energy. But sometimes in muscles, याद रखिए, our muscle cells can also respire anaerobically, but only for a short time, थोड़े समय के लिए बेटा, when there is a temporary deficiency of oxygen during heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weight lifting, the demand for energy is high, but the supply of oxygen to produce the energy is limited. Then anaerobic respiration takes place, anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of energy. And then in glucose, in muscles, याद रखिए, लिखा हुआ है muscle cells लिख सकते हो, in the absence of oxygen, it gives lactic acid and energy. And do you सर तो remember? हमारी बॉडी कब तक अनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकती है। थोड़ी देर के लिए करती है, जब आप बॉडी में एनर्जी डिमांड हाई है, मसल सेल्स में पर्टिकुलरली, आप बहुत तेज भाग रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं, ऑल्दो यू आर ब्रीथिंग फास्ट, बहुत तेज सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है, लेकिन जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए सेल में उतना नहीं पहुंच पा रहा है, कम पहुंच पा रहा है, तो उस समय सेल अपने आप को बचाने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेगा, ग्लूकोज तो है वहां पर, ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, वो थोड़े समय के लिए होता है,
और उस समय लैक्टिक एसिड बनती है, और लैक्टिक एसिड बनने के बाद में क्रैम्प आ जाता है, बहुत जबरदस्त क्रैम्प आती है, फिर आदमी भाग क्या पाएगा, वो तो गिर ही जाएगा बेटा। ठीक है। Have you ever wondered why you get muscle cramps after heavy exercise? So note down or underline, बुक में भी तुम्हारे पास है। The cramp occur when muscle cells respire anaerobically. The partial breakdown of glucose. उस समय भी ग्लूकोज पूरा पूरा ब्रेकडाउन नहीं होता है, पता है ना आपको। ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन कंप्लीटली ओनली ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज प्रोड्यूस, मसल का स्पेशल है ये, स्पेशल रेस्पिरेशन है ये, है ना, इन मसल्स ओनली, राइट। व्हाट इज फॉर्म्ड, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। हाँ, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स। ये जमा जब हो जाता है मसल में, वहां पर मसल सेल्स में, तो दैट कॉजेज क्रैम्प व्हिच इज सोरनेस ऑफ सोरनेस, स्वेलिंग आ जाती है वहां पर, है बहुत तेज दर्द होता है। नाउ हाउ, व्हाट इज द रेमेडी, उपाय क्या है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ। गर्म पानी की सिकाई करें या पूरा स्नान ही कर लें अच्छे से, और अ मसाज, याद रखना मसाज की स्पेलिंग ई नहीं है इसमें, शुरू में एम ए है, एम ई कर दोगे तो दूसरा मीनिंग निकल जाएगा, मालूम है ना। इंग्लिश वाले, लैंग्वेज वाले, जिनके ज्यादा लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, मैसेज हो जाएगा वो, 0 मार्क्स मिलेगा, है ना। ऐसा ही हो जाता है। एक बच्चे ने मेरा नाम लिखा था, सागर सर, देखो क्या लिखा था उसने, पढ़ सकता है कोई। सर SUGAR सर। सर शुगर, SUGAR। हाँ, ऐसा का मत करना साइंस में, ठीक है बेटा। अब नाउ क्वेश्चन कम्स, हॉट वाटर बाथ या मसाज कैसे हेल्प करती है। सो हॉट वाटर बाथ और मसाज improves circulation of blood. As a result, the supply of oxygen to the muscle cells increases. वहां पर ऑक्सीजन पहुंचने लगेगा प्रॉपर। The increase in the supply of oxygen results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. तो जो लैक्टिक एसिड था वो ब्रेकडाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, एंड विल कम आउट फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द ब्रीदिंग आउट, में बाहर निकल आएगा, एंड देन यू विल गेट रिलीफ। एनी क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। यस, एनी क्वेश्चन बेटा। सर जो सर होम ब्रीड सर मीन सर जो मैन होते हैं सर वो लोग सर, अगर सर ऑक्सीजन, सर जो एडल्ट्स होते हैं सर, बड़े लोग सर, वो सब सर ऑक्सीजन लेते हैं, तो सर बच्चों और बड़ों की ऑक्सीजन में सर थोड़ा बहुत अंतर होता है यहाँ पे सर, लेने का नहीं, लेने का देखिए लंग्स की कैपेसिटी अपनी है, तो हम इनहेल करते हैं एक बार तो ऑक्सीजन रिच है। अभी आगे पढ़ाएंगे बेटा इसको, लेट अस लर्न मोर अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो समझ में आ जाएगा इसको, सर क्या होता है। हाँ सर, जब हम ग्रो होते हैं तो हमारे लंग्स के साइज भी बढ़ते हैं। हाँ, एक बट नॉट ऑलवेज, अ पर्टिकुलर एज ग्रुप में, जैसे जब हम हमारी ग्रोथ हो जाती है तो लंग्स की साइज, उसकी एक्सपेंशन की क्वालिटी बेटा, लंग्स की साइज तो अपनी है, वो लंग्स एक्सपैंड करता है। जब हम ऑक्सीजन जाती है ना, लंग्स फुल, दोनों लंग्स हवा से भर जाते हैं, है ना। और हवा कहाँ तक जाती है वो बताएंगे अभी आगे, है ना। कहाँ कहाँ से हवा जा रही है, ये कैसे लंग्स एक्सपैंड होता है, उसमें रोल है चेस्ट कैविटी का हमारा। चेस्ट कैविटी जो है ना, ये चेस्ट कैविटी इसको बोलते हैं, रिब केज का रोल भी हमारा है, रिब केज की मूवमेंट है। रिब केज के नीचे जो है ना, यहाँ पर डायफ्राम है, उसकी मूवमेंट है। तो छोटे बच्चों में उनकी कितनी ग्रोथ है, मसल्स कितना ग्रोथ हो, कितना स्ट्रेंथ है ना, जो मसल का स्ट्रेंथ कितना है, उनकी जो रिब केज है उनका साइज देखो छोटा ही रहता है ना बेटा। धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमारा चेस्ट की साइज भी बढ़ती है, रिब्स केज भी स्ट्रांग होते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। और छोटे बच्चों की ज़्यादा भाग दौड़ थोड़ी करनी पड़ती है, उनकी एनर्जी डिमांड की तो कमी होती है ना उस समय। जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी एनर्जी डिमांड बढ़ती है, तो अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो नाउ लेट्स गो अहेड। डिफरेंस आपने देख लिया था, एक बार और देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इनएरोबिक रेस्पिरेशन। It occurs in the presence of oxygen. It occurs in the absence of oxygen. It involves the exchange of gases between an organism and outside environment. Exchange of gases is absent. उसमें एक्सचेंज गैस का नहीं हो पाता है, वहां पर कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है कि जो अभी आपने देखा मसल्स में ही जब हुआ तो लैक्टिक एसिड बना, अपने आप बाहर निकला नहीं, निकला वो। यस सर, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से निकला। हाँ, हम तो निकाल देते हैं, देखिए जो भी निकाला हमारा बाहर,
इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये पॉइंट चलो छोड़ देना, आपके लायक नहीं है। ऐसे हमने जब सेल पढ़ाया था आपको बिगनिंग में चैप्टर 1 में बताया सर था। माइटोकॉन्ड्रिया तो सर वो उसके अंदर फिर बहुत सारे हाँ, साइटोप्लाज्म में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल है, इसी के अंदर रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द एक्टिव साइट फॉर रेस्पिरेशन। इसी के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ फूड होकर एनर्जी रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हर ऑर्गेनिज्म। एवरी सेल देयर इज माइटोकॉन्ड्रिया। इट अकर्स ओनली इन द साइटोप्लाज्म में होकर रह जाता है, उनको माइटोकॉन्ड्रिया में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट ऑलवेज रिलीजेस CO2 and H2O। इट रिलीजेस क्या, अल्कोहल, एंड इन मसल्स लैक्टिक एसिड। ठीक है बेटा। इट यील्ड्स 36 ATP। इट यील्ड्स ओनली 2 ATP। देखो कितना कम एनर्जी, आप लिखना है इतना ही। इट गिव्स मोर एनर्जी, इट गिव्स लेस एनर्जी। एग्जांपल सेल्स इन आवर बॉडी, दैट इज एग्जांपल्स ईस्ट एंड मसल सेल्स में होते हैं ये। एनी डाउट? ATP फॉर्म लिख लो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट is the universal unit of energy used in all living cells. It is a very basic molecule which meets our energy needs and is formed in the later steps of glucose oxidation. ऑक्सीजन का मतलब जब ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन से तो एनर्जी रिलीज होती है, एंड देन दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल। जस्ट लाइक एनर्जी करेंसी है कि तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो भूख लग रही है तो जाओगे, है ना, किसी दुकान वाले के पास में, उससे पिज्ज़ा बर्गर ये तुम्हारे पसंद है ना। अगर ज़्यादा पसंद नहीं है तो अच्छी चीज़ के लिए खाओगे, लेकिन पैसे नहीं तो क्या होगा, भूखे रहोगे। ऐसे ही अगर ATP सेल में स्टोर है तो क्या होगा, अगर हम खाना नहीं भी खा रहे हैं और बॉडी में एनर्जी डिमांड आ रही है तो उससे मिल जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, नाउ वी कम्स ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। याद रखिए, ब्रीदिंग इज नॉट रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग बोलते हैं सिर्फ टेकिंग इन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हाँ, ये फिजिकल प्रोसेस है। ओके, सो नोट डाउन ब्रीदिंग। व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग मींस टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है Sir, it is the process of exit of gases between the organisms and the atmosphere. It involves two steps. लंबा चौड़ा गूगल खोल के देख लो, लिख लो और बोल दो। समझ में कितना आ रहा है? सर मुझे सर मम्मी ने सर बताया है, हाँ, सर मेरी मम्मी सर लिख के रखा है। बढ़िया बढ़िया। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दो प्रोसेस है। जब हम टेकिंग इन एयर इट इज कॉल्ड इनहेलेशन, व्हेन वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। स्पेलिंग ठीक से लिख लो, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। एनी डाउट? एनीवन? नो सर। नो, ठीक है बेटा। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ब्रीदिंग, जब तक सांस तब तक आस, कहते हैं ना, जब तक जीवन है चलता रहेगा। चाहे सोते रहो, जागते रहो, और बैठ के काम करो मत करो, टेबल पे बैठ जाओ, मोबाइल खोल लो, खूब वीडियो देखते रहो, क्लास अगर सर ले रहे हैं आप वीडियो देखने में मगन रहो, तब भी ये ब्रीदिंग चलती रहेगी, जो हमें नहीं करना चाहिए, है ना बेटा। हम सब ह्यूमन बीइंग है बेटा, मनुष्य होने के नाते हमें ये हमेशा पता करना चाहिए व्हाट इज गुड फॉर मी, अपने लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। जिस इंसान को ये समझ नहीं है वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। इतना विवेक हमें भगवान ने दिया है। हम हायर ऑर्डर, हम ईश्वर की अनुपम कृति हैं। सबसे सर्वोत्तम रचना भगवान ने बनाई मनुष्य को, और बहुत जिम्मेदारी भी दी हम बेटा। तो कई बार हम रास्ता भटकते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे बड़े हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, है ना। कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नाउ हम ब्रीदिंग रेट बोलते हैं, याद कर लीजिए स्पेलिंग को। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? सांस लेने का मतलब ये नहीं एक बार सांस लिया और छोड़ा, दोनों मिलाकर एक ब्रेथ कहलाता है। ऐसे ब्रेथ काउंट करना पड़ेगा एक मिनट में। घड़ी चालू कर लो और फिर अपनी ब्रीदिंग, एक बार सांस लिया छोड़ा, एक ब्रेथ हुआ, काउंट करके देखो कितना आता है। अब ब्रेथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, दोनों मिलाकर एक ब्रेथ कहलाएगा। और ऐसे ऐसे कितनी बार आप एक मिनट में करोगे, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट।
Okay. Do you know some facts? Yes, sir. On an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times. रेस्ट में अगर हम होते हैं, एडल्ट कोई अगर है तो 15 से 18 बार इन अ मिनट, यानी ब्रीदिंग रेट होगी 15 to 18 टाइम्स. But during heavy exercise, the breathing rate can increase up to 25 times per minute. While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन कमी होती है, एनर्जी ज्यादा चाहिए, फास्ट चाहिए तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो सांस लगे तभी जाएगा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में. Now, one more thing, the air around us has various types of unwanted particles, such as smoke, dust, pollens. मतलब pollens flowers में से निकलते हैं. When we inhale, the particles get trapped in the hair present in our nasal cavity. नाक में cavity है, उसमें फंस जाते हैं. Then they irritate the hair lining, and we start sneezing to take out these particles. Right? क्योंकि हमारे नोज के अंदर हेयर्स हैं, वो फिल्टर कर लेते हैं, लेकिन कई बार ये टच करते हैं इनर लाइनिंग को और हमें इरिटेशन होता है, हम छींक देते हैं, स्नीजिंग आती है. टेक केयर बेटा, व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन. और अभी तो और भी हमें प्रिकॉशन रखना है कोरोना वायरस इन्फेक्शन के चलते, है ना, इसलिए मास्क लगाते हैं हमें. स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स is also linked to cancer. It must be avoided. स्मोकिंग को हमेशा अवॉइड करना है ना. हाँ बोलिए सर. जो सर अगर अपन सर ज्यादा तेजी से सर छींकते हैं तो सर अपना सर गला फट जाता है क्या? नहीं, बहुत हाई स्पीड में जो जो ड्रॉपलेट्स आते हैं वो बाहर निकलते हैं बेटा. उस समय हम कभी कोई भी बच्चा या हम लोग कभी भी आंखें खोलकर छींक नहीं कर सकते. इतनी तेज थ्रस्ट आती है कि पलकें बंद हो जाती है, आंखें बंद हो जाती है. देखना कभी छींक के देखना, आप आंखें बंद हो जाएगी आपकी. हार्ट बीट एक सेकंड के लिए मतलब फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रुक जाती है. ठीक है, तो आवाज तो आती है ना बेटा, गले से आवाज आती है. आवाज किस से? लैरिंक्स से आती है, वॉइस बॉक्स से आती है. उसके अंदर में दो मसल्स के पेयर ऑफ मसल्स है, उनके बीच में गैप है. उस गैप से जब एयर बाहर निकलती है लंग से होकर के तो साउंड प्रोड्यूस होती है. हम मैं बोल पा रहा हूँ, बहुत लंबे समय तक बोलते हम थक जाते हैं क्योंकि हमारी एनर्जी यूज होती है. लंग से एयर फोर्स होकर आती है, वॉइस बॉक्स में जाती है. वॉइस बॉक्स में लैरिंक्स है, वहाँ पर लैरिंक्स के अंदर दो मसल्स हैं, पेयर ऑफ मसल्स, उनके बीच से हवा बाहर निकलती है और आवाज आती है. आप भी क्या करो, बलून लेना, बलून को फुला लेना. फुलाने के बाद बलून के माउथ के पास में रबर को ऐसे पकड़ के कभी थोड़ा सा कम खोलना और हवा निकलने देना. कैसे आवाज आती है, ज्यादा करना, ऐसे करके कम ज्यादा करके आप कंट्रोल करना, है ना. अगली बार मैं बलून लेकर आऊंगा तब कर दिखाऊंगा. ये देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये डायग्राम आपके बुक का है. यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट. इट है नेजल पैसेज, देन ओरल कैविटी, तो हमारे मुंह की कैविटी है, इससे कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पर दोनों का एक ही मिलता है मुंह के अंदर. फिर ये देखिए ट्रैकिया, 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 ट्रैकिया विंड पाइप भी उसको बोलते हैं. ट्रैकिया इज कॉल्ड विंड पाइप, है ना. यहाँ तक तो गले में दोनों ओपन है. यहाँ पर जो फूड पाइप भी है, विंड पाइप भी, दोनों का सेम, दोनों यहाँ पर है. लेकिन देयर इज ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ पर एक फ्लैप जैसा होता है, पढ़ाया था मैंने, याद कीजिए. वो क्या करती है, विंड पाइप को, ट्रैकिया को क्लोज कर देता है जब हम कुछ खाते हैं या पानी पीते हैं तो, और इससे सिर्फ हवा जाती है जब फ्लैप खुला रहता है तो. फिर ये जाने के बाद में ट्रैकिया इट ब्रांचेज इनटू, है ना, ब्रोंकाई. ईच ब्रोंकाई एंटर्स इनटू ईच लंग. ये ब्रांच होकर के एक इसमें जाती है, लेफ्ट में, एक राइट लंग में जाती है. और फिर जाने के बाद में फिर फर्दर ब्रांचिंग हो जाती है ना, ब्रोंकस को ब्रोंकियोल में. और ये सारे ब्रोंकियोल ब्रांच होकर जा रहे हैं. एंड एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंकियोल देयर इज एयर सैक. गोल गोल बलून के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें एयर भर जाता है. दे आर कॉल्ड अल्वियोलाई. भी दिखाते हैं आपको. ये लंग्स हो गए पूरा, ये रिब्स हमारे हैं, ये डायफ्राम है. द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी इज मेड अप ऑफ थिक मस्कुलर शीट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डायफ्राम, है ना. इस डायग्राम को और समझिए, देखिए यहाँ पर देखिए, है ना. ये सबसे पहले कहाँ से हवा जाती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल हवा, इससे जाती है नेजल पैसेज में, यहाँ से जाती है नेजल चैम्बर में, यहाँ जाती है नेसोफैरिंक्स में, फिर लैरिंक्स में जाती है, साउंड बॉक्स में, लीड्स टू थ्रू ग्लोटिस, ट्रैकिया में जाती है. ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई
it further divides into secondary bronchi, it further divides into tertiary bronchi and bronchioles, and at the terminal of bronchioles there are alveoli. ये देखिए alveoli, alveoli दिख रहा है, ये alveoli है। इसके अंदर में जाकर के alveoli के पास में यहाँ पर there is a rich network of blood vessels। जब हम ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेते हैं, ये हवा ब्रोंकियल अल्वियोलाई में जाती है और अल्वियोलाई में यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में, और जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर आता है अल्वियोलाई में, अल्वियोलाई से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई टू लैरिंक्स, एंड फाइनली इट कम्स इन द नेजल कैविटी एंड कम्स आउट ऑफ द बॉडी। फिर हम बताएंगे इसमें डिटेल में क्या होता है जब ऑक्सीजन फ्यूज होता है, डिफ्यूज होता है ब्लड में, तो ब्लड का जो हेमोग्लोबिन है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन से और बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इसी तरह से जब कार्बन डाइऑक्साइड आकर के ब्लड से डिफ्यूज होता है तो वो बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, है ना। और इस तरह से फिर अकेला लंग्स का नहीं रोल है, लंग्स और हार्ट दोनों इंटरकनेक्टेड है बेटा, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन दिस वे। ब्लड से ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज है वो दैट टेक्स प्लेस। विल स्टडी इस चैप्टर के साथ में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, दोनों रिलेट होकर हम पढ़ेंगे, है ना। सो विल स्टडी मोर अबाउट दिस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग हो कैसे पाता है, हाउ आर वी एबल टू inhale and how are we able to exhale and what are the organs which are involved and how do they function। और आपके साथ एक एक्टिविटी छूट जाती है, छुट्टियां आपके पास है, ये वाला बनाइए आप लोग, सभी लोग बनाइए एंड डेमोन्स्ट्रेट करिए, अपना अपना दिखाइए, कैमरा खोल करके मुझे एक्सप्लेन कीजिए, ये वाला कर सकते हो बेटा। यस सर। हाँ जी, बनाइए आप लोग सभी लोग इसको, ठीक है। विद दिस है ना, वी स्टॉप इट या यस बेटा, है ना। हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट हियर, बहुत कम बच्चे आ जाए, ओनली 12 ऑफ यू आर हियर, नहीं 14 ऑफ यू आर हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 दिखा रहा है ना, 14 दिखा रहा है, ऐसे कैसे हो गया, कौन नहीं छूट रहा है। मैं नाम पढ़ रहा हूँ बेटा, इसका नाम नहीं आ रहा बता देना मुझे, है ना। ये देखो अनिल, परम, यस सर। ऋषिका, प्राची, हिमांशु, पार्थ, राघव शर्मा, शुभ्रा, राघव तिवारी, हर्ष वर्मा, राधिका एंड रेणुका। सर और क्या अभी क्या सर परम। परम, परम का बताया, मैं नाम पढ़ रहा हूँ, एक बार सुन लो। जिसका नाम छूटे, राधिका 2 बार ज्वाइन किए हुए, तभी तो ज्यादा है यार, राधिका 2 टाइम ज्वाइन किए हुए है। and your presentation and Radhika is with you। हाँ yes बेटा, that's right, good। so let me stop presenting। any question बेटा, है ना। so आप मॉडल बनाइएगा उसका, ठीक है, मार्क्स मिलेंगे आपको उसके, और दूसरे मॉडल बनाइएगा साथ में, छुट्टियां भी है तो कर लीजिएगा इसको, है ना, दैट भी है। ओके, shall we conclude, let us chant शांति पाठ। शांति शांति शांति। Sai Ram। Homework is draw the diagram of human respiratory system। ड्रॉ करेंगे सभी लोग, ओके। सो यू मे लीव बेटा। सायरम सर। सायराम बेटा, सायरम सर, थैंक यू सर। सायराम, थैंक यू बेटा, है ना।